Hello students, this is our new chapter Sources of Corporate Finance. Now students, yesterday I have sent you one video related to the business finance. So student, in that video you have learned what is the finance and what are the sources of finance, means from which sources we can arrange or raise the money. Okay, मीन्स मैंने आपको जो कल वीडियो भेजा था तो आपने उसमें देखा होगा कि एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से फ़ंड कहाँ से, मतलब कौन कौन से सोर्स हम वहाँ से फ़ंड ला सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब वो वीडियो देखने के बाद अगर आप ये चैप्टर जब पढ़ते हैं सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो नाउ स्टूडेंट, आवर सेकेंड चैप्टर इज़ द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. Sources of finance, or we can say sources of corporate finance, means business finance. Corporate means business. Now students, very first we will read the introduction. Finance hold the key to all business activities. No business activities can ever be pursued without financial support. Just students, without the finance we can say the capital. Finance matlab fund, capital, money. So students, without the finance we cannot start any business, we cannot establish any business, or we cannot run out the business. So students, the finance is very important to conduct the any business activity. Means we have to require the finance, हमें फाइनेंस की ज़रूरत है to conduct the business activity. No business activity can be done without the financial support. बिना फाइनेंस की कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती. Students, you will notice that I am not taking the test book. I am just giving out points on your screen. कुछ मैं points देती हूँ और मैं explain करती हूँ. Student, this is a very important for the exam purpose. ये जो मैंने आपके सामने जो मैंने points रखे हैं, अगर आप ये भी पढ़ के जाएंगे और बाद में इसको elaborate करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर द एग्ज़ाम पर्पस. ओके, तो आपको मतलब पूरा बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये आप पढ़ के जाओगे एंड इसको एक्सप्लेन करोगे, सो विल गेट द मोर एंड मोर मार्क्स. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी द फर्दर. सो स्टूडेंट्स, फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ द प्रमोशन. यस, वी नीड द फाइनेंस. Means each and every step we need the finance. If you have to do any promotion organizations, we have to expand the business. If you have to elaborate the business, if we have to develop the business, so we require the finance on the regular basis. So students, means ultimately our business is depend upon the finance. We can मैंने आपको एक लाइन ही बताई थी कि the finance is like a blood for the organization. finance क्या है, एक blood की तरह organization में होता है. If there is a flow of finance in the organization, so the business perform very well. The business or a company will go very smoothly. Now students, the finance needed by the business organization is termed as the capital. Yes students, आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे finance means what? Means which money we need for business, that is capital. हम जो पैसा, जो finance हम बिज़नेस में लगाते हैं, हमको बिज़नेस में जो भी पैसा, फाइनेंस, मनी, फंड जो भी ज़रूरत में आता है, ओके, बिजनेस फ्लो होने के लिए, दैट फाइनेंस और मनी इज़ नोन एज द कैपिटल. ओके, मीन्स विच मनी वी नीड फॉर द बिजनेस पर्पज और फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, इट इज़ नोन एज द कैपिटल. नाउ नेक्स्ट वन, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टेन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटी. ये स्टूडेंट, जितने भी बिजनेस हैं उनको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने को दे रिक्वायर अ capital. Okay student, a joint stock company which is modern form of business organization and being a large undertaking require huge capital for the business. Okay, this huge capital collection or capital formation has special significance in the management of joint stock company. Student, किसी भी कंपनी में जो हम फंड जमा करते हैं, जो भी फंड रेस करते हैं, so there has a many significant or special significance in the management of joint stock company. Students, अब ये जो फंड है, कैपिटल है, वी कैन कलेक्ट दैट फंड, वी कैन रेज दैट फंड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. मीन्स दे हैज़ अ डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम देयर वी कैन कलेक्ट द कैपिटल. नाउ स्टूडेंट्स, द कैपिटल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अभी कैपिटल कैसे कैटेगराइज होता है, मतलब कैपिटल कैसे क्लासीफाइड हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम.
एक तो टाइम लिमिट पे भी होता है, एक ओनरशिप में भी होता है। अभी टाइम लिमिट में कैसे होता है, जो सबसे फर्स्ट होता है वो होता है, मेरी फर्स्ट होता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म मतलब जो लंबे टाइम के लिए हमको फाइनेंस मिलता है। सेकंड होता है मीडियम टर्म होता है, एंड थर्ड होता है शॉर्ट टर्म होता है, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए हमको फाइनेंस मिल जाता है। ओके, एंड बिसाइड दिस इट आल्सो कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप पे भी ये क्या है, क्लासिफाइड हुआ है, बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द फाइनेंस इज कैटेगराइज इनटू द बिटवीन टू पार्ट्स, द ओन फंड एंड बोरोड फंड। अभी ओन फंड क्या होता है एंड बोरोड फंड क्या होता है। सो हम लोग, मैंने क्या बताया, जो भी कैपिटल है, जो भी फाइनेंस है, इट कैटेगराइज बिटवीन द टू फंड। द फर्स्ट वन इज द ओन फंड एंड सेकेंड वन इज द बोरोड फंड। सो दिस इज कलेक्टिवली नोन एज द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ये जो फाइनेंस, जो कैपिटल जो कैटेगराइज हुआ है ओन फंड एंड बोरोड फंड के बीच में, इट इज़ नोन एज द सोर्सेस ऑफ फंड। नाउ स्टूडेंट, किसी भी कंपनी, इफ द एनी कंपनी रिक्वायर अ फंड, सो फॉर अरेंजिंग और कलेक्टिंग दैट फंड देयर हैज़ अ डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज होते हैं, तो उस सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सो स्टूडेंट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर हैज़ अ two sources of the finance. The first one is the owned capital and second one is the borrowed capital. Student, if you will see in your textbook, there you can also see the sources of finance based on the types of capital. The first one is the owned capital and second one is the borrowed capital. Now student, first let's understand what is the owned capital. So owned capital is that capital विच वी यूज़ फ्रॉम द सेल्फ, मतलब वो पैसा जो हमने अपने सेल्फ के पास से लगाया है। ओके, मीन्स वो पैसा जो हमारा खुद का पैसा है, मीन्स द कैपिटल विच इज़ रेस्ड बाय द ओन द, जैसे कोई कंपनी का अपने खुद के पैसे लगाती है, सो दैट कैपिटल रेस्ड बाय द कंपनी ओनली। ओके, मीन्स जो कंपनी का ओनर है उसने खुद के पैसे लगाए हैं, सो द, इसका यही मीनिंग होता है कि द कैपिटल विच इज रेस्ड बाय द कंपनी ओनर, जो कंपनी का ओनर है अपने पास से उसने लगाया है, दैट कैपिटल इज नोन एज द ओन कैपिटल। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट। सो जो ओन कैपिटल मतलब जो खुद के पास से हमने जो खुद के जो सेल्फ जो अपने पास से पैसे लगाए हैं, इट इज़ नोन एज द ओन कैपिटल। एंड इट इज़ द स्टूडेंट, इसको एक और भी एक टर्म दिया गया है, इट इज़ आल्सो द इंटरनल, इट इज़ आल्सो द इंटरनल फंड। एक इंटरनल फंड होता है, इंटरनल कैपिटल होता है, मतलब ये क्योंकि कंपनी के अंदर से ही लगाया गया, कंपनी का जो मालिक है, जो ओनर होता है, उसने खुद के पास से पैसे लगाए हैं, सो दिस इज़ द इंटरनल कैपिटल। ओके स्टूडेंट, ना जो कंपनी के जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लगाया गया है, इट इज़ नोन एज द इंटरनल कैपिटल। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज़ द बोरोड कैपिटल। ओके, अभी बोरोड कैपिटल क्या होता है? बोरोड कैपिटल मीन्स दैट फंड विच वी कलेक्ट फ्रॉम द आउटसाइडर्स, वो फंड जो हमको बाहर से मिला है, मतलब जो हमने बाहर से रेज किया है, इट इज़ नोन एज द बोरोड कैपिटल। ओके, इंटरनल कैपिटल कौन सा हो गया? ओन कैपिटल। ओके, विच कैपिटल अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, जो ऑर्गेनाइजेशन से मिला है कंपनी का पैसा। ओके, इट इज़ नोन एज द इंटरनल कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, खुद का पैसा। ओके, एंड बोरोड कैपिटल मीन्स जो हमने बाहर से लिया, जो हमने किसी से लिया है, इट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल कैपिटल, मीन्स विच कैपिटल वी रेज फ्रॉम द आउटसाइडर और आउटसाइड। ओके, अभी आउटसाइडर क्या हो सकता है? डिवेंचर्स हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। ओके, वन बाय वन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द ओन कैपिटल, अभी आपको समझ में आएगा ओन कैपिटल क्या होगा, मतलब हमारे खुद का पैसा हम जो लगाते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, ओके, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो इफ़ यू नीड 1 लाख रुपीज़, सो स्टूडेंट फर्स्ट यू विल सी इन योर ओन, आप पहले खुद को देखोगे आपके पास कितने पैसे हैं। सो यू विल, अगर आपके पास 20,000, आप 20,000 आप खुद के लगा दिए, तो जो 20,000 है ये आपका क्या होगा? ओन्ड कैपिटल होगा, मीन्स 20,000 आपके खुद के पैसे हो गए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बाकी की 80,000 आपने क्या किए? बाहर से लिए हैं। अब बाहर से कैसे लिए हैं? 20,000 आप उसमें से खुद के लगाए हैं, देन 80,000 में से सपोज़ आपने 50,000 शेयर्स इशू करके लगाए हैं, और 10,000 आपके खुद के जो लास्ट ईयर के कुछ बचा के रखे थे, वैसे
वो है, ओके। अगर हाँ, अगर आपका बिज़नेस 2-3 साल पुराना है तब आपके पास रिटर्न अर्निंग होगी। अगर आपके पास आपका बिज़नेस नया है तो आपके पास रिटर्न अर्निंग होगी नहीं, बिकॉज आपका बिज़नेस तो न्यू है, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, जो कैपिटल हम खुद के पास से लगाते हैं, जो पैसा हम खुद के पास लगाते हैं, दैट इज़ द ओन्ड कैपिटल, ओके। और जो हमने बाहर से लिए हैं, लोन लिए हैं, मार्केट से उठाए हैं, दैट इज़ नोन एज द बोरोड कैपिटल। नाउ स्टूडेंट, द ओन्ड कैपिटल आल्सो है क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द शेयर्स एंड सेकंड वन इज द रिटेन अर्निंग। स्टूडेंट, अभी शेयर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट, शेयर्स इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल। शेयर्स इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल। एक छोटा पार्ट होता है उसका ओन्ड कैपिटल का या कैपिटल का, उसे शेयर्स बोला जाता है। मीन्स ए स्मॉल यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल होता है, जो पैसा होता है, उसके एक छोटे से हिस्से को क्या बोला जाएगा? शेयर्स। अभी मैंने स्टूडेंट आपको एग्जांपल दिया, if you are going to start the business, so you need 1 lakh rupees. if you are investing the 20,000, so 20,000 आपका खुद का ओन कैपिटल हो गया, ओके स्टूडेंट। देयर आफ्टर स्टूडेंट, आपने क्या किया है कि कुछ शेयर्स, मतलब आपने कुछ अपने कुछ कंपनी के जो शेयर्स है वो भी आपने इशू कर दिए, ओके। तो सपोज आपने 30,000 के शेयर्स इशू कर दिए मार्केट में, तो स्टूडेंट जो 30,000 हो गया आपने मार्केट में इशू किया, इसका मतलब आपने किसी बंदे से 30,000 रुपीज़ लिए, तो मीन्स आपने क्या किया, अपनी कंपनी का 30% शेयर क्या कर दिया, उस बंदे को दे दिया। मीन्स वो बंदा भी क्या बन गया, वो जो पर्सन वो क्या बन गया, आपकी कंपनी का 30% का ओनर बन गया। शेयर्स, इनडायरेक्टली द शेयर्स मीन द ओनरशिप। इनडायरेक्टली शेयर्स मीन्स ओनरशिप, मतलब आपकी कंपनी में वो 30% का मालिक बन गया, बिकॉज आपने उससे 30,000 रुपीज़ लिए हैं अपनी कंपनी में शेयर देके, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे शेयर का मतलब यही है, पार्ट और यूनिट ऑफ अ कैपिटल। और अगर अकॉर्डिंग टू 2013 एक्ट के थ्रू बात करें, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू, सो शेयर्स मीन्स द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर मतलब एक शेयर, शेयर मीन्स अ शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, पार्ट, यूनिट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर कैपिटल जो है, जो भी शेयर कैपिटल है किसी कंपनी का, उसके एक हिस्से को क्या बोला जाएगा, शेयर। मतलब उसके एक शेयर को, शेयर कैपिटल कंपनी के शेयर को क्या बोला जाएगा, शेयर। अंडरस्टूड? एंड इंक्लूड द स्टॉक। शेयर का डेफिनेशन यही है, अ शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल कंपनी में उसका एक छोटा सा हिस्सा, इट इज़ नोन एज द शेयर्स। एंड इंक्लूड द स्टॉक्स। स्टॉक पहले सिर्फ इतना ही था, अ शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, बट अब क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब शेयर्स मीन्स क्या हो गया, अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। जो स्टॉक है वो भी इंक्लूड होंगे। तो आप स्टूडेंट आप इतना समझ लीजिए बस, शेयर मतलब क्या होता है, स्मॉल और पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। जो भी कैपिटल है पूरी कंपनी का 1 लाख, उसका एक छोटे से हिस्सा जो हमने बाहर से, जो हमने अपनी कंपनी में किसी को ओनरशिप दे दी है, दैट इज़ नोन एज द शेयर्स। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आफ्टर द सेकेंड सोर्स ऑफ द कैपिटल इज द रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मीन्स स्टूडेंट द ओन मनी, खुद का पैसा, ओन मतलब जो सेफ मनी, जो सेव्ड मनी हमने रखी है, जो हमने सेफ मनी रखी है, शेयर्ड मनी रखी है, दैट इज नोन एज द रिटेन अर्निंग। स्टूडेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट। मीन्स स्टूडेंट, इफ देयर इज अ न्यू बिजनेस, सो देयर विल नॉट बी द रिटेन अर्निंग। अगर हमारा न्यू बिजनेस है तो वहाँ पर रिटेन अर्निंग नहीं होगी, बिकॉज हम तो न्यू बिजनेस स्टार्ट करें तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपने पास कहाँ से रहेगा। बट स्टूडेंट, इफ़ आवर बिजनेस इज़ ओल्ड अप टू द 3 or 4 years, अगर हमारा बिजनेस 3 से 4 साल पुराना है, सो डेफिनेटली देयर विल बी द रिटेन अर्निंग। तो हमारा जो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट रहेगा लास्ट 2-3 years का, उसमें से हम थोड़ा बच्चा के रिटेन अर्निंग सेव करके रखते हैं। सो दैट प्रॉफिट इज़ नोन एज द रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मीन्स अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। रिटेन अर्निंग मीन्स अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट। हमारे लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट थे उसका एक हिस्सा जो हमने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था एज अ डिविडेंड हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। स्टूडेंट, दिस टॉपिक वी विल लर्न इन डिटेल, बट अभी के लिए आप थोड़ा शॉर्ट में ही समझ लीजिए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो नोन एज द प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसको प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी
बोला जाता है, मतलब जो हमने लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट सेव करके रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस रखे हैं, ओके, वो उसको क्या बोले, उसको हम अब इस साल हम उसको यूज़ करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ द रिजर्व फंड। अंडरस्टूड स्टूडेंट व्हाट इज़ द रिटेन अर्निंग? नाउ स्टूडेंट्स, again the shares are classified into the two parts, equity shares and preference shares. Yes students, yesterday I told you what is the equity share and what is the preference shares. Equity share is the ordinary share and it don't have any preferential right. This is it has the ownership and it will get the dividend but at the fluctuating rate. This is the permanent capital. इसके जो शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ओके, and it get the dividend at the fluctuating rate. Okay, but they are the risk bearer. ये क्या होते हैं, रिस्क बियरर होते हैं, मतलब इनके ऊपर रिस्क होता है। they will not get dividend before the preference shareholder. preference shareholder के पहले इनको डिविडेंड नहीं मिलता है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, अभी इक्विटी शेयर हमने बता दिया कि इक्विटी शेयर क्या होता है, दे आर द ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। ये इनके जो शेयर होल्डर होते हैं ऑर्डिनरी होते हैं, बट दे आर द परमानेंट, दे हैव नो एनी प्रिफरेंशियल, इनको कोई प्रिफरेंशियल राइट नहीं होता, बट दे गेट द डिविडेंड फ्लक्चुएटेड रेट आफ्टर द प्रिफरेंशियल। प्रिफरेंशियल को मिलने के बाद ही ये क्या करते हैं, इनको शेयर डिविडेंड मिलता है, एंड दे आर द रिस्क बियर, ये रिस्क बियरर भी होते हैं। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज़ द प्रिफरेंशियल। स्टूडेंट, यस्टरडे आई टोल्ड इट व्हाट इज़ द प्रिफरेंशियल, मैंने आपको बताया था द प्रिफरेंशियल होल्डर दे हैव द प्रिफरेंशियल राइट टू गेट द डिविडेंड। सबसे इनके नाम में ही पता चलता है कि इनको प्रेफरेंस मिलता है। सो दे हैव द राइट टू गेट द डिविडेंड वेरी फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट, दे आल्सो हैव द प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल। मतलब इनको राइट होता है कि डिविडेंड के टाइम पे भी इनको फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट होता है, एंड द पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होती है, एट द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी जब बंद होती है, एट द टाइम दे विल आल्सो गेट द प्रेफरेंस टू गेट द रिटर्न ऑफ कैपिटल। मतलब जो पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया है वो भी इनको इक्विटी शेयर होल्डर के पहले मिलता है, जब कंपनी बंद होती है तब। मीन्स डिविडेंड भी कैसे मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पहले। प्रॉफिट हुआ कंपनी में तो क्या करेंगे, जो भी उसका इंटरेस्ट वगैरह वो देने के बाद रिटेन अर्निंग जो है, प्रॉफिट जो है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए रिटर्न अर्निंग रख लेंगे, इसको रिजर्व रख लेंगे, सब प्लस ऐसे सेव करके रख लेंगे साइड में। फिर जो बचेगा उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वो प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दैट इफ दे विल लेफ्ट द प्रॉफिट, सो इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट। ओके, बट स्टूडेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कब मिलेगा, उनको इक्विटी शेयर होल्डर के पहले मिलेगा। सो दे हैव द राइट टू गेट द डिविडेंड एंड दे हैव द राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। Now students, they will get the dividend at the fixed rate. Okay, now students, अब मैंने आपको इक्विटी शेयर्स बता दिए, प्रेफरेंस शेयर बता दिए। नाउ स्टूडेंट, द बोरोड कैपिटल मैंने बता दिया आपको, डिवेंचर्स। बोरोड कैपिटल क्या होता है, जैसे कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर मैंने आपको बताया था, डिवेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट और एक्नॉलेजेस दैट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि मतलब उधारी या फिर लोन लिया गया है। इट कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी। एक ये प्रॉपर्टी भी क्या करता है, चार्ज करता है। अगर इफ कंपनी फेल टू रिटर्न द डिवेंचर, सो द डिवेंचर होल्डर विल चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स। कंपनी के असेट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं, उसको लेके वो पैसे वसूल कर सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिवेंचर सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू किया जाता है अंडर द कॉमन सील ऑफ द company. Now students, there are the more examples of the borrowed capital, debentures, public deposits, bonds. Student, I told you the bonds only issued by the government companies. Now thereafter company also raise the fund from the banks, financial institution, okay, trade credit. So students, this is the whole topic related to the sources of finance. This is only introduction part of the sources of finance. After that we will learn one by one in detail इन नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप जो भी है वो आप नोटिफिकेशन दे देना। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।